Hello friends, in the last class we have discussed about current density, the relation between current density and conductivity, the relation between conductivity, resistivity and relaxation time. ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान रहे, और न्यूमेरिकल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट फ्रॉम दिस टॉपिक दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ. मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, जो भी रिलेशन मैंने कराया है उसको अपने माइंड में फीड करके रखिए. कैसे वैरी करता है और क्या रिलेशन है एक दूसरे में, ये सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है. और जिस तरह से डिटेल में हम लोगों ने काम किया है उसको थोड़ा सा अगर समझ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डील with mobility and the temperature variation with resistance, or variation of resistance with temperature variation. That has to be taken care of. Fine. Let us deal with mobility. Conduction takes place ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर. ये सारी बात समझ में आती होगी. कोई भी कंडक्शन तभी होगा जब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज मोबाइल रहेगा. इन मेटल्स इट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. गैसेस में आयंस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस यूज टू फ्लो. इन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन यूज टू फ्लो. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर देयर that conducts electricity. So conduction of charge must be there for the conductivity. That's mobile of charge, movement of charge must be there for mobility. That should be taken care of. So we can write, if an electric field E is applied, electric field E is applied in any conductor, the mobility of the charge of the mobile charge within the conductor is given by mu is equal to Vd by E. That should be taken care of. Vd by E. What is mu? Mu is equal to mobility of the charge. Vd, drift velocity of the charge, and E is the electric field applied. ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा मोबिलिटी होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उसका. चार्ज जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ज्यादा उस पर करंट फ्लो करेगा. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. नाउ बेटा याद रखना, ये जो इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. और न्यूमेरिकल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट ऑफ दिस. Numericals are very frequent. Mu is equal to Vd by E. Vd is the drift velocity
इस चीज का फाइन. Let us now discuss the variation of resistance with temperature. Resistance with temperature. Basically, we know that the resistivity of a conductor varies with temperature, and the resistivity varies like rho is equal to rho t, basically rho t is equal to rho naught 1 plus alpha delta t. That has to be taken care of. That is, you can write rho t equal to rho naught 1 plus alpha t minus t naught. That is a change in temperature or increase in temperature. Where rho t is equal to resistivity at temperature T. Resistivity at temperature T. Rho naught resistivity at any reference temperature. Temperature alpha temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. Now we can find from here, we have rho t minus rho naught is equal to rho naught alpha delta t, or alpha is equal to rho t minus rho naught upon rho naught delta t, that is delta rho by rho naught delta t, or we can write alpha equal to 1 by rho naught d rho by dt. We can write it in a different way. Can I? We can write it like alpha equal to 1 by rho naught d rho by dt. That has to be taken care of. This is the basic formula for finding the temperature coefficient of resistance. I think you must have understood everything. Now, let us find the different ways to calculate alpha. Alpha means temperature coefficient of resistance. आप ये समझो, क्योंकि हमारा रो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और हम जानते हैं R is equal to rho L by A. Since R is directly proportional to rho resistivity of the conductor, तो रेजिस्टेंस भी इसी तरीका से वैरी करता है. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. कहने का मतलब है उसी तरीका से हम लोग लिख पाएंगे आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 plus alpha delta t. Delta t is the increase in temperature that we have already dealt. R naught resistance at the reference temperature, RT resistance at temperature T. ये चीज सदा. तो हम लोग को अब निकालना है
different format to find the value of alpha. अल्फा हम लोग को अलग अलग तरीका से जानने की जरूरत है. हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीका से अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. लेट अस सी. फर्स्ट, finding the value of alpha. Finding the value of alpha. Alpha means temperature coefficient of resistance. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. पहला, we have RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. हम लोग लिखेंगे RT माइनस R naught is equal to R naught alpha T माइनस T naught. कोई दिक्कत? हम लोग लिखेंगे RT माइनस R naught अपॉन R naught T माइनस T naught इज इक्वल टू अल्फा. कोई दिक्कत? और अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय R naught dr बाय dt. देखिए, दोनों एक सा ही रिलेशन है. इस चीज को आपको समझने की जरूरत है. सेकेंड वे वी कैन सी, कैन आई बच्चों ये बातें समझ में आ रही है? कुछ नहीं किए हैं, केवल इसको रीअरेंज किया हूं मैं और कुछ नहीं किया. फाइन. लेट अस सपोज सेकंड इज, let R1 is the resistance at temperature T1 and R2 is the resistance at temperature T2. We can write R1 is equal to R naught 1 plus alpha T1 minus T naught. R2 is equal to R naught 1 plus alpha T2 minus T naught. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. फाइंड R1 बाय R2, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T नॉट. ओके, वी कैन राइट R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T नॉट 1 plus alpha T2 minus T naught to the power minus 1. लिख सकते हैं क्या ऐसे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बाइनोमियल एक्सपेंशन से यदि इसको एक्सपेंड करते हैं, इट विल बी लाइक 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T naught 1 माइनस अल्फा T2 माइनस T naught. ये माइनस आ गया. अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं. थोड़ा सा आगे बढ़े में कैन आई रब? कैन आई? यस. नाउ वी कैन राइट R1 by R2 is equal to 1 plus alpha T1 minus T naught 1 minus alpha T2 minus T naught. Just multiply and 1 plus alpha T1 minus T naught minus alpha T2 minus T naught minus alpha square T1 minus T naught T2 minus T naught.
होगा क्या, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और आपका यही आने वाला है ना। फाइन, अगर ये बात ठीक समझ में आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, वी कैन कैंसिल आउट दिस। अगर ये कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास हो जाता है R1 by R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 minus T2 T0 sorry T1 minus T0 minus T2 minus T0 हो जाएगा क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, जस्ट अल्फा कॉमन किए हैं और उसके बाद हम लोग लिख पाएंगे 1 प्लस अल्फा, ये T0 गया, T1 माइनस T2 R1 बाय R2 और R1 बाय R2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा T1 माइनस T2 और वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस T2। इस बात को ठीक ठीक समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Therefore, we can write alpha is equal to R1 minus R2 upon R2 T1 minus T2। बेटा ये दूसरा फॉर्मेट है, अल्फा निकालने का दूसरा फॉर्मेट, इस चीज का सदा ध्यान रखना। अब हम लोग तीसरा फॉर्मेट निकालने की कोशिश करते हैं, ये किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। थर्ड इज, वही काम करेंगे, सपोज R1 is equal to R0 1 plus alpha T1 minus T0, R2 is equal to R0 1 plus alpha T2 minus T0। दोनों को डिवाइड कर दो, R1 by R2 is equal to 1 plus alpha T1 minus T0 upon 1 plus alpha T2 minus T0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R1 1 plus alpha T2 minus T0 is equal to R2 1 plus alpha T1 minus T0। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T0 इज इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1 माइनस T0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों अल्फा को सेपरेट कीजिए, हमारे पास हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अल्फा R2 T1 माइनस R2 T0 माइनस, ओके फाइन, माइनस R1 T2 माइनस R1 T0। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अल्फा R2 T1 माइनस R1 T2 प्लस
टी नॉट R1 माइनस R2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, इसी को हम लोग फिर से लिख पाएंगे। अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2 प्लस T नॉट R1 माइनस R2। दैट शुड बी टेकन। अगर T नॉट को हम लोग 0 मानते हैं, इफ T नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास अल्फा हो जाता है R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2। इस चीज को सदा ध्यान रखिए। ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत मदद करने वाले हैं। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसी भी तरीका। फ्रेंड्स देखिए, जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर है, दैट कैन बी सीन विद द ग्राफ एंड हाउ द ग्राफ वेरीज। ग्राफ किस तरह से चेंज करता है वो भी हम लोग को देखने की जरूरत है। थोड़ा सा देखते हैं आखिर क्या हम लोग कर पाते हैं। लेट अस सी। Here, resistance or resistivity at temperature. Always keep in mind. So, it goes like this. It can go like this, it can go like this। 3 ग्राफ बना रहा हूं मैं। हमको केवल ये बता दो कौन सा कंडक्टर के लिए है, कौन सा सेमीकंडक्टर के लिए है और कौन सा एलॉयज के लिए है। इस तरह का ग्राफ हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं जब आईवी कर रहे थे। Now, try to understand. This is, with the increase of temperature, the resistance increases, always keep in mind. हम लोग अभी भी पढ़े हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस वैसे वैसे इंक्रीज करता है। तो यहां पर देखते हैं, with the increase of temperature, resistance increases. So this is for conductor. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। सो दिस ग्राफ इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड हेयर the temperature or resistance of an alloy does not vary at normal temperature. At very high temperature, the resistance increases. So, this is for alloys. That has to be taken care of. Therefore, friends, whatsoever we have done, I think you must have understood। जितना सा भी काम किया हूं वो सारा कुछ हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए। बार बार देखने से
आपको समझ में नहीं आने का कोई कारण नहीं है। सब कुछ फुल डिटेल में दे रहा हूं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ कई बार आता है और दे विल गिव यू द सिंगल ग्राफ। तीनों ग्राफ एक साथ मिला के नहीं देंगे, या फिर मैचिंग पर्पज से अगर कोई दिया तो दिया, उस पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be dealing about EMF, potential difference and combination of resistances. बाबू कुछ करना मत करना, नेक्स्ट लेक्चर को कभी मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर को मिस करोगे तो बहुत बड़ा आफत आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन का रिपीटेशन है, किसी भी तरीका का एग्जाम हो ऑल इंडिया लेवल पे। इस चीज को सदा ध्यान रखिए। और जितना इलेबोरेट मैनर में और जितना ल्यूसिड मैनर में, जितना आराम आराम से हम लोग काम करेंगे, इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा, अरे इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत आसान टॉपिक है। खुद ऐसा फीलिंग आ जाएगा। अगर ऐसा फीलिंग आ गया तो इससे बड़ी बात क्या होगी यार। थैंक यू वेरी मच।